ठीक है, दिस इधर ऐसे घूम, बट सिंगल टाइम एक ही बार घूमा ऐसे, फिर भी हवा मिलेगी, राइट? मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। सो सो फैन को बार बार घुमाना है ऐसे, तो ऐसे फास्ट फास्ट रोटेट करता है, फास्ट फास्ट फास्ट। सो so if you want to make fan rotate multiple times, see, there is a hardware used and electrical things used, so it is rotating. But if you want to make it इसको यूज, अगर आपको, अगर उसमें आपको अपना कोडिंग अगर डाल दिया आपने, कोडिंग वो सर्किट बोर्ड होता है उस पे, एक्चुअली उसमें सी एज असेंबली लैंग्वेज ही यूज करते हैं, सो वी कैन, सो दैट्स परफेक्ट फॉर दैट एग्जांपल। देन उसमें सर्किट बोर्ड में क्या होता है ना कि लाइक सर्किट बोर्ड, इसमें कोड होता है, तो वो कोड इधर इंटीग्रेट होता है, और वो इंटीग्रेट करके उसमें उसको इंटीग्रेट करके ये इधर, सपोज हम ये इधर हम डाल सकते, इफ यू हैव सीन लाइक दैट फैन, क्योंकि कोड डाल दिया ना तो कोड में कुछ भी कर सकते हैं, है ना, तो स्मार्ट फैन बन जाता है कि भाई जिसको इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत पड़ेगी, है ना, बट हमको बटन नहीं दबाना पड़ेगा उधर जाके, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल के बटन से वो फैन चालू हो सकता है, टीवी चालू हो सकता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, every electrical appliance can work just on the click of mobile, and it's expensive, I know. Here C as a assembly language it's used, okay. So उधर हमने अगर लॉजिक ये लिख दिया ना कि, हाँ वही लॉजिक सेम था लूप का, ओके। सो दिस लूप कैसे यूज करते हो, and some things I tell in a slow way, some things I tell in a fast way, that depends on my way of teaching, like I focus on, okay, and the important things I write it on a blackboard, so that becomes your responsibility to note it down or remember it, whatever you think it's feasible, it's easy, it's uh, suitable, functional, operational, whatever, okay. Then types of loops, okay, called as for loop, called as while and do while। अभी कब कौन सा यूज करेंगे,
when we use which loop that we are going to see. So basically every loop is used, मतलब we can use every loop to perform every task, but वह डिपेंड करता है कि उस कंडीशन पे आपको कौन सा लगता है कि आपको उस टाइम इजी रहेगा, तो वो आप आपके इसके मतलब आपके कंफर्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं. सो इट्स इजी, है ना. सो all these concepts are just for your own comfort and all that. You can use it according to your way. It's not important that ये यही use करना है, वो वही use करना है. Okay, use it anyway. Just there are some method of the particular language that you have to follow. Otherwise, use it anyway. So that's only my way of teaching, that I am using it according to my way to explain you. Okay, that's only the way of teaching. Fine. तो हम फॉर लूप पे थे. ये एज इट इज ये लिखना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है. कंपल्सरी राइट दिस. फैन को घुमाना है, राइट. ठीक है, ये कीवर्ड है ना. कीवर्ड्स को हम हाथ में लगाते, वो जैसे उधर रहने दो वैसे. ठीक है, तो और यूज हमेशा वेरिएबल्स का करते हैं, और वेरिएबल्स को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना. जैसे इधर दे दिया I know your name is starts from the letter which is present in A to Z. A to Z. I know that. Why? Because that's the rule in defining the name. It's general rule, है ना, in human, in this world of, मतलब human के नाम डिफाइन करने का वो जनरल रूल है. ऐसे अगर आपका नाम समझो, ऐसे के भी आपका नाम है क्या, 1 B. Suppose pronounce it बिंदु. No, wrong. ये कैसे प्रोनाउंस होगा, 1 बिंदु. So have you ever seen this as anyone's name? So this is the rule that मतलब, so basically rule is what? Names are always anything. Rule is actually that it is written in terms of characters, English characters. So similarly there are some rules to declare the variables. So you know, like see, this is a variable only, but you have written it 1. It's wrong, you know. We cannot use number before the word. So we can use small case, लोअर केस, अपर केस, मतलब कैपिटल स्मॉल कहीं भी किधर भी कैसे भी यूज कर सकते हैं. कैपिटल ये भी यूज कर सकते हैं. इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, मतलब सॉरी, वेरिएबल नेम. By using these two slashes we can write anything in the code, because it will not work. We will able to understand now which part does what. Okay.
राइट, 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 ये कुछ भी लिखो इसका, है ना, ये कुछ भी लिखो चलता है, बट हाँ ये भी चलता है, ये भी यूज किया है ना, use it anywhere in the letter. So basically either remember or note it down. So basically only characters and underscores, ठीक है, only characters and underscores, this is underscore, and characters A to Z or A to Z small 2, okay. Then see for loop में अभी वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना सीखा था, डेटा टाइप लिखा था, है ना। अब वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, जैसे हमने बुलियन वैल्यू स्टोर की थी वन किसमें, एक वेरिएबल था अपना फैन नाम का, सो जैसे बट और वो हमने शायद डिक्लेयर भी किया था, उसमें उसका डेटा टाइप दिया था क्या, क्योंकि उसमें डेटा स्टोर किया है ना हमने, वैल्यू है वो डेटा है एक, तो वो बन किया था स्टोर, तो उसमें इधर भी सेम करना पड़ता है, पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, तो डिक्लेयर हम ऐसे इंट, अभी वेरिएबल नेम लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा, लेकिन कुछ भी लिखूंगा मैं सिर्फ इधर अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दूंगा कि कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, फाइन। तो इंडिपेंडेंट ये इतना क्या है ना, तो ये डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन ये लूप के अंदर लिखेंगे इसलिए इधर सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। पिछली बार सेमीकोलन लगाया था, वो मेन मेथड के अंदर या बाहर किया तो सेमीकोलन लगाना पड़ता है डिक्लेयर, मतलब अकेले में वो डिक्लेयर हो गया, वो किसी के अंदर नहीं था, ये फॉर लूप के अंदर है, तो इधर हमें सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू स्टोरेज से ये ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करेंगे और नंबर ही स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर इंटीजर एक नंबर होता है, मतलब इंटीजर ये ध्यान रखो कि 0 to 1, सॉरी ये स्केल आपने देखा है ना, इधर 0 होता है, इधर माइनस में जाता है, इधर प्लस में जाता है, और इसका अंत नहीं है, इसका भी अंत नहीं है, ये दुनिया के उस तरफ का पोल है, ये दुनिया के उस तरफ का पोल है ना, ये नंबर्स, इसलिए these values are going to find store here, so like here we store it 3 4, suppose here we store 4, and then ये एक पार्ट हो गया, तो इधर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन या कॉमा है शायद, फाइन, ओके 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 ओके, इधर
Okay, semicolon. So the next part is, this part is called as initialization. Okay, the next part, अभी make it why एक्चुअली करना क्या है कि इधर से ये स्टार्ट होगा, फोर से, है ना, और लूप का भी ऐसा ही सिंटैक्स है, इधर करली ब्रेसेस, इधर से ये स्टार्ट होगा तो किधर तो जाके खत्म होगा, मतलब फोर से स्टार्ट हुआ है, सपोज हमने बिंदु फोर से स्टार्ट हुई तो हमने खत्म उसको कर दिया 30 पे, ठीक है, मतलब 30 पे खत्म किया मतलब क्या, मतलब ये इसको ये समझते हो ना मैथ्स में, इसको लेस बिंदु लेस देन 30, लेस देन बोलते हैं, ओके। And these things, these see, whichever the word I pronounce while explaining this lecture has some specific, like in English, uh, the words I tell you, like operator, keyword, and all these things are concept, because we are this is conceptual understanding, right, part we are on this learning. Then uh, please note it down, so it will become easy that when you refer your college book or other reference book to understand those books, है ना, अगर आपको वो पढ़ना होगा तो, अगर नहीं भी होगा तो भी, because see, everyone has their own learning journey, तो आप कहाँ पे है, that I am not aware of, so I am telling. ये 30 से कम है, ये एक कंडीशन है ना, कि भाई बिंदु 30 पे जाके ही रुकेगी, ये कैसे पता चलेगा कि बिंदु 30 पे जाके रुकेगी, क्योंकि 30 बिंदु की वैल्यू क्या है, 4, है ना, तो ये पहले इस कंपाइलर ये देखेगा, फिर इधर आएगा, फिर बिंदु 4 को 30 से कंपेयर करेगा, बिंदु मतलब 4 है ना, तो 4 को 30 से कंपेयर करेगा, 4 छोटा है, 30 बड़ा है, ठीक है। और जब ये चेक होगा ना, इधर भी ऐसे रहेगा, ऐसे निकलो, ये चेक होगा ना तो कंपेयर इधर आता है, इधर ये लॉजिक में, और इधर आपने क्या लिखा होगा कि बेसिकली हियर वी हैव टू, इधर फैन लेते ना वेरिएबल का नाम, तो एक अंडरस्टैंडेबल होता, स्टिल ठीक है, स्टिल ठीक है। इधर ये कर्ली ब्रेसेस में जो लॉजिक हम अभी लिखेंगे ना, सेम, व्हाई आई एम यूजिंग ऑलवेज printf, बिकॉज हम बेसिक लेवल पे सारे कंसेप्ट्स, बेसिक लेवल पे ये जो कोर कंसेप्ट्स है ना वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, और वंस इट्स इजीली अंडरस्टैंड, मतलब एक बार इजीली अंडरस्टैंड हो गए तो आप जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो उधर यूज करके यू कैन सॉल्व एनी इशू, राइट।
प्रिंटफ करेंगे। इधर जो भी हम प्रिंटफ में लिखेंगे ना, वो आपको कंपाइलर पे जितनी बार लूप रन होगा उतनी बार वो दिखाई देगा। जैसे ये 4 से शुरू हुआ है, 30 तक जाएगा, है ना। तो ये 4 से 30 तक कितने हुए? काउंट, प्लीज काउंट। ये हुए 20 what? This 4 5 6 till 30. Here is 3 2 1 minus this, मतलब 30 में से 3 माइनस करो, this becomes 27. So basically प्रोग्राम में ये फैन ऑन हो गया था, चालू हो गया था, अभी रोटेट करना है ना। फैन चलता है, बटन दबाने पे चलते हैं, पर अभी एक ही बार चलेगा तो नहीं चलेगा, बार बार चलना पड़ेगा। मतलब मीन्स a single time of a fan runs, then it's not okay. So we have to make it rotate multiple times, right? Iterate means the same. So 4 से शुरू के होगा, 30 पे जाके रुकेगा। तो ये 30 बार ये जो स्टेटमेंट है आपके मतलब जो आउटपुट की स्क्रीन है ना, वो कंपाइलर जो दिखाता है, कंपाइल करके रन करने के बाद आउटपुट स्क्रीन दिखती है और रन इंटरप्रेटर करता है। ओके फाइन, इंटरप्रेटर रन्स द प्रोग्राम। सो बेसिकली उस पे आउटपुट ये ऐसा आता है, फैन रोटेट फैन रोटेट फैन रोटेट। दिस शोज 27 टाइम्स। दिस मस्ट बी द आउटपुट, फाइन। सो लूप ऐसे काम करता है। ओके, some things remaining. Do you know what's remaining in this loop? There is one third part here. Okay, loop में इधर इस जगह पे थर्ड पार्ट है। वो थर्ड पार्ट के क्या है? Because here is no space, so I am writing it here. That third part is called as increment and decrement. मतलब हम इस वैल्यू को बढ़ाएंगे, सॉरी इस वैल्यू को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है। मतलब देखो मैंने आपको समझाया, बट ये सही है। कंपाइलर देखेगा बिंदु को 4 वैल्यू दिया है, फिर इधर आएगा 4 30 से छोटा है जो हमने इधर लिखा है ना, वो चेक करेगा कि ये सही है या गलत है। तो वो चेक करेगा कि ये कंडीशन सही है, मतलब ट्रू है, तो नीचे आएगा, तो ये प्रिंट होगा, फैन रोटेट प्रिंट होगा, है ना। तो इधर हमने ये पार्ट नहीं लिखा तो एरर आएगा। So actual work, the compiler works actually comes here, then it prints this is right. Okay, after checking this will see everything is right. We have to write this part, this is also right. This part is
बिंदु प्लस प्लस आई हैव रिटन, मतलब प्लस 2 बार लिखा है। और ये बेसिकली सी, अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर दिखाई दे ना तो उसको ऑपरेटर बोलते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर को। और आगे जाके हम देखेंगे कि वर्ड्स भी होते हैं, उसको भी ऑपरेटर बोलते हैं। फाइन, आगे जाके फॉर दिस लेक्चर दिस इज अ वेल डिजाइंड कोर्स। Okay, if you go through each lecture, everything is understandable. नहीं सीखना, you just have to click on a mobile button of मतलब button, click back, पार्टी मारा जाता है, it will go back. So क्या होता है कि कंपाइलर कैसे काम करता है वो बोलता हूँ। ये तो बराबर होता है मैंने कि I told it right that equals to 4, ये चेक करता है हाँ सही है, फिर इधर जाता है ये चेक करता है ये कंडीशन ट्रू है। बिंदु में 4 वैल्यू है, इसमें इस वैल्यू है सी, फिर ये प्रिंट करता है, एक बार प्रिंट करेगा, एक बार प्रिंट करेगा, फिर दूसरी बार देखेगा, अरे ये बिंदु में तो 4 ही वैल्यू है, फिर जाएगा इधर ही, फिर देखेगा ये इधर ही है, ये इधर जाएगा ही नहीं, प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये 4 का जाएगा ही नहीं, इसके लिए हमको ये लिखना पड़ता है। ठीक है, प्लस प्लस मतलब बिंदु को एक वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है, मतलब ये 4 से 5 होगा। फाइन, ये 4 से 5 होगा। When we will write it here, how will it become 4 से 5? That 4 values assigned to the bindu. Whenever the equal of this operator is used, equal to, that time we have to consider that उस टाइम हमें ये देखना होगा कि 4 वैल्यू बिंदु को दी गई है, तो ये इधर जाके इधर 4 का 5 होता है इसका, है ना, क्योंकि ये प्लस प्लस है, 4 का 5 होगा। और जब 5 होगा तो कंपाइल में रन टाइम में क्या होता है, ये तो लिख दिया, एक खोड़ देता हूँ रन टाइम में, आई एम टेलिंग एट रन टाइम, सॉरी, okay, I am telling at run time, and whenever I use the compile word, it just you know that you have seen the code practical. ये 4 का इधर 5 होता है, ठीक है, 4 का 5 हो गया, फाइन। तो ये दूसरी बार प्रिंट होगा, क्या वही प्रिंट होगा, फैन रोटेट। So this operator tells it that you have to print it multiple times, second time, third time. Then 4 का 5 हुआ इसलिए दूसरी बार, और फिर ये फिर चेक करेगा। ये लूप में क्या होता है ना, जब तक ये कंडीशन नहीं है ना तब तक वो चेक करता रहता है ना। तो 5 का 6 होगा, 6 का 7 होगा, 7 का 8 होगा, इधर वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये चेंज किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि इधर ये इंक्रीज करता है, ठीक है। इधर ये इंक्रीज कर रहा है, इसे कहते हैं लूप, ठीक है। हो गया, घूमने लगा फैन, मैंने दिखाया था फैन घूमने लगा। So here I end the lecture of today's day. Today's date is 26th of July.
And basically this is evening time, something around okay 7 p.m. and 7 means 7. It's not what we can say. It's not 19 p.m. Sorry, 19 p.m. No?